Good afternoon and welcome. Maharashtra versus Mumbai in the IDFC First Bank Syed Mushtaq Ali Trophy 24-25. We are live from the Rajiv Gandhi International Stadium at Uppal in Hyderabad. Maharashtra versus Mumbai, always such a keen contest, as old-timers would tell you, the equivalent of the Battle of Roses. That's the points table in Group E. Group E matches being played at Hyderabad. Andhra right on top because of the net run rate. Kerala with 8 points, but with net run rate good, but they have lost one game. Maharashtra and Mumbai unbeaten, 8 and 4 points each. Services also 1 victory, 4 points. Goa and Nagaland yet to log any points. So the topper teams would try to really finish at the top so they get a direct qualification for the quarterfinals. Lovely settings here in Hyderabad. We're all in readiness for this game. It's Mumbai taking on Maharashtra. And of course, to my left, I've got both the captains. Shreyas Iyer, the captain of Mumbai. Ruturaj Gaikwad leading Maharashtra. And Balbik Butch, he's the manager for this game. You got the coin, Ruturaj? Please spin it. Tails. Tail is the call. Come on, come on, come on. Ah, yes, man. And it's a tail. Finally. You're going to bowl first. First ball coming up here. Quick off the blocks. That is good cricket all round. Just playing into the gap, taking off, good understanding. Upish, but safe. And that's run into the gap as well. वाह जी वाह, आवाज सुनिए आप. This time playing it much better. Punch of the back foot, 4 runs. The short one, and it was almost like a tennis forehand, and that will go for yet another boundary. Oh, that's a miss hit, but the leading edge will take it for another boundary. And the short pitch one pulled. Will it be taken? Yes, it is. ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 19, महाराष्ट्र 29 पे. But middle and leg stump line would mean that the batter very well placed. Oh, this time yet another boundary. विकेट नंबर 2. अवस्थी भी ने वापसी करी है. Rahul Tripathi gone for 16. Maharashtra 46 for 2. Oh, once again middle and leg, and that's asking to be punished. Yet another bouncer once again. Upish, but straight to the fielder. He's taken as well. वापस पहले जाना होगा अर्शिन को 19 रन बना के. लीजिए अपील हुई है जोरदार. और अंपायर ने भी कह दिया है ये आउट है यहाँ पे. Out for 7 of 6 deliveries. Upish, that's in the air. Fielder coming underneath. And that's taken as well. सत्यजीत बच्चों को जाना पड़ेगा वापस. उन्होंने बनाए 6. Oh, Castle there. Inganekar out without scoring. That's it, the gap as well. That's racing away. That's going to be a boundary here. This bar, see their bats in. Or he has Zabardast shot. It's a backup and delivery. Gap mein khela hai. Yahan milenge 4 run. Oh, that's through. That's 4 runs. इस बार ऑन साइड पे ये जबरदस्त प्रहार है. Oh, that's a good yorker. And is given. गाजी ने बनाए 32, महाराष्ट्र 136 पे 7. Maharashtra to victory against Kerala. मारा तो ये भी जोर से है जी. हाथ लगा गेंदबाज का, लेकिन उसके बाद भी कोई खिलाड़ी था नहीं जो उस गेंद को रोक पाए. गेंद काफी हवा में है और क्या कैच पकड़ा है. घोष ने बनाए 11 रन. महाराष्ट्र 150 पे 8. Oh, that's hit. That's maximum. Oh, this time inside out. But straight down the throat of the fielder there. 38 गेंदों में 47 बनाए. This one innovative shot. So not much of power behind that. Will have to remain content with a single. So Maharashtra end up on 171 for 9. It will be an interesting chase. Maharashtra, this is what happened. Got start both the openers, but in an attempt to accelerate the scoring, both fell. Identical score of 19. Rahul Tripathi also was looking good, though he could not
convert it into something substantial. Kazi and Nikhil Naik were the two. A respectable score, nonetheless, 171 for 9. Prithvi Shaw, very experienced, strike rate of 151. Angresh Raghuvanshi, 20 years old. Need those early wickets, Maharashtra. First ball of this run chase. Right on the button there, nicely bowled as well. Equally well played by Prithvi Shaw. Down the leg, appealing as well. And the finger is up. Prithvi Shaw out without scoring. Mumbai 0 for 1. यहाँ पे रन्स मिलेंगे और मिलेंगे भी 4. Nicely played in the gap. Lovely shot from Raghuvanshi. Apesh, but in the gap. Lovely shot there. और यहाँ रूम पे फायदा उठाया जो Going over the top. Is clearing the infield. यहाँ मिस टाइम हुआ है. फील्डर नीचे हैं और दिलाई है विकेट अश्विन कुलकर्णी ने पहले ही ओवर में और बड़ी सफलता. Raghuvanshi, the man out for 21, was shaping up well. ये पिकअप शॉट देखिए आप, बहुत दूर गई है जी गेंद. यहाँ पे भी रन्स मिलेंगे. अपने लिए रूम बनाया था श्रेयस अय्यर ने. This time straight as an arrow. That's going to be another boundary to end the over. Raghuvanshi, this time Shreyas Iyer stamping his authority over there. इस बार ऑन साइड पे और 4 रन और जोड़ दीजिए. इस बार ऑन साइड पे धकेलते हुए अजिंक्य रहाणे और गैप में खेला 4 रन. And there comes the reverse shot there. There comes the improvisation. Taken on the full, and Ajinkya is finding the gaps. Shreyas Iyer, last over also we saw that. This time once again the reverse sweep. Out due to injury. Magnificent shot that was. Caught underneath that one. Solanki flighting, full toss. What a shot that. Shreyas Iyer brings up his 50 in style. तो फिर से कमाल का शॉट मारा है यहाँ पे. Short ball, asking for trouble. Has led from the front, and he continues to entertain the cricket lovers here. Pitching it short, but this time an error on the part of the Mumbai skipper. श्रेयस अय्यर ने बनाए 39 गेंदों में 71. यहाँ फिर से मौका है तीसरी विकेट का. लीजिए, तीसरी विकेट मिल गई है उनको. But Bhavani Bol Chaudhary, Mumbai 142 for 4. This time Apesh, and that will beat the field of 4 runs. That will bring up his 50 as well. Ajinkya Rahane, what a fine knock. Pulls it high up in the air. That should be taken. Man the deep and takes it. मात्र 34 गेंदों में 52 बनाए हैं. मुंबई 151 में 5. Pulls it. And that's that should have been taken. कदमों का इस्तेमाल किया है यहाँ पे और क्या बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है. Score required. Pulls it. And that's in the gap as well. That's going to be the winning stroke, the winning runs here for Mumbai. They won this game by 5 wickets. It's been a really good performance by them. Chasing it very comfortably in the end. Convincing win for Mumbai. और मुंबई का खेमा काफी खुश होगा जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें थी यहाँ. महाराष्ट्र इससे पहले 2 के 2 मुकाबले जीत के आई थी इस मुकाबले के अंदर. Played so well along with Ajinkya Rahane. 2 experienced batters doing the job for Mumbai. The first loss for Maharashtra as far as their campaign is concerned in the Syed Mushtaq Ali Trophy. मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी महाराष्ट्र की. टॉप ऑर्डर को अच्छी शुरुआत मिली थी, अच्छी स्ट्राइक भी कर रहे थे, लेकिन गेंदबाजों ने कमाल किया. कोटियान 3 सफलताएं 21 रन देके. एक समय तो ऐसा था 1 रन पे वो 3 विकेट थी. अवस्थी ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 36 रन देके 2 विकेट उनके नाम. और जब बल्लेबाजी करने उतरी थी मुंबई की टीम, 2 विकेट खो दिए थे 32 रन पे. उसके बाद श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे, उनके बीच में 110 रन की वो साझेदारी.
महाराष्ट्र से गेम काफी दूर ले गए और मुंबई ने मुकाबला क्या मध्य क्रम में उतरेंगे रोहित शर्मा? भारतीय कप्तान या केएल के किसी का तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करना इस पर निर्भर करेगा कि गिल फिट होते हैं या नहीं। भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा की दूसरे टेस्ट में वापसी तय है। यह एडिलेड में 6 दिसंबर से खेले जाने वाले इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल की जगह अंतिम 11 में शामिल होंगे। यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि केएल राहुल का बल्लेबाजी क्रम क्या होगा। राहुल के लिए रणनीति। इससे पहले 30 नवंबर को कैनबरा में गुलाबी गेंद से होने वाले 2 दिवसीय अभ्यास मैच में राहुल किस नंबर पर खेलेंगे यह देखना रोचक होगा। यदि सुमन गिल समय पर फिट नहीं होते हैं तो राहुल को नंबर 3 पर उतारा जा सकता है। हालांकि यह भी चर्चा है कि भारतीय टीम को फायदा हो सकता है अगर रोहित शर्मा मध्य क्रम में खासकर नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करें। राहुल का प्रदर्शन। पर्थ टेस्ट में रोहित की गैर मौजूदगी में के कारण राहुल को ओपनिंग करने का मौका मिला। उन्होंने दोनों पारियों में तकनीकी रूप से सबसे मजबूत बल्लेबाजी की, 2677 रन बनाए। राहुल एक अब तक माहौल में ढल चुके हैं। उन्होंने एमजीसी पर इंडिया ए के लिए मैच और फिर पहला टेस्ट खेल अपनी ओपनिंग की दावेदारी मजबूत कर ली है। रोहित की चुनौती। रोहित पहले 5 वर्षों में टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे हैं। पिछले 5 घरेलू टेस्ट मैचों में उनके आंकड़े थोड़े कमज़ोर रहे हैं, मगर ये कठिन पिच पर खेले गए थे। ऑस्ट्रेलिया को छाल भरी पिचों पर उनके कट और पुल उन्हें फॉर्म में ला सकते हैं। गिल के फिटनेस पर सवाल। गिल को वाका मैदान पर आपस में हुए मुकाबले में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद यह पर्थ टेस्ट नहीं खेल पाए और अभी तक दूसरे टेस्ट में अभ्यास भी शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अगर गिल गुलाबी गेंद के साथ पर्याप्त अभ्यास नहीं कर पाते तो उन्हें जोखिम में डालना मुश्किल होगा। यदि वह फिट होते हैं तो ध्रुव जुरेल को टीम से बाहर किया जा सकता है। स्पिन विभाग में संभावित बदलाव। एडिलेड ओवल में सिर्फ स्पिन गेंदबाजी में रणनीति बदलाव देखने को मिल सकता है। पर्थ में रविंद्र जडेजा और अश्विन को बाहर बिठाकर वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था। 2021 में गुलाबी गेंद टेस्ट में अश्विन ने 4 विकेट लिए थे, जिसमें स्टीव स्मिथ जैसा बड़ा बल्लेबाज भी शामिल था। लेकिन मौजूदा नेट सत्र में अश्विन, जडेजा और वाशिंगटन की फॉर्म में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। यह भी तथ्य है कि गुलाबी गेंद में टेस्ट के स्पिनरों का प्रभाव कम होता है और बल्लेबाजी आम हो जाती है। जडेजा की ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए अहम है, लेकिन वाशिंगटन ने पर्थ में कोहली के साथ 89 रन की साझेदारी कर अपनी उपयुक्तता साबित की। संभावित रणनीति की बात करें, एडिलेड ओवल में बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल हो सकता है। राहुल का ओपनिंग करते रहना टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि रोहित को मध्य क्रम में आजमाना टीम के लिए संतुलन को सुधार सकता है। स्पिन विभाग में ज़्यादा बदलाव की संभावना कम है। गौतम गंभीर लौटे। एडिलेड में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर निजी आपात स्थिति के कारण स्वदेश अपने परिवार के पास लौट आए। 6 दिसंबर से एडिलेड होने वाले गुलाबी गेंद में टेस्ट से पहले उनके टीम से जुड़ने की संभावना नहीं है। गंभीर कैनबरा में 30 नवंबर से होने वाले 2 दिवसीय दिन रात के अभ्यास मैच में नहीं होंगे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि यह मंगलवार सुबह भारत के लिए रवाना हो गए। वह एक निजी इमरजेंसी थी। वह एडिलेड में दूसरे टेस्ट में पूरा लौट आएंगे। भारतीय टीम 27 नवंबर को कैनबरा रवाना होगी, जहां पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री अल्बानीज द्वारा उनके सम्मान में दिए जाने वाले समारोह में भाग लेगी। 2 दिवसीय मैच दिन रात के दूसरे टेस्ट की तैयारी के लिए काफ़ी अहम है। इसके लिए गुलाबी कुकुबोरा गेंद का इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री एकादश की कप्तानी हरफनमौला जैक एडवर्ड को करेंगे। टीम के कई युवा खिलाड़ियों के साथ स्कॉट बोलैंड और मैथ्यू रेनशा जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। मैच के नियम दोनों टीमें तय करेगी और ऐसी उम्मीद है कि सभी को बल्लेबाजों के गेंदबाजी का मौका मिलेगा, क्योंकि इस मैच को आधिकारिक दर्ज हासिल नहीं है।